Bring your hands in Namaskar Mudra. We will chant a mantra, start our session with a prayer. I will chant one line and you will repeat that. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः. शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे. रब योर हैंड्स, palm. Give a gentle massage to your face. Up your eyes and slowly blink your eyes inside. Come back to Namaskar Mudra. And with a smile on your face, you will open your eyes. Okay. वेरी गुड. सो हमारे पास ना दो स्टूडेंट्स नए हैं आज. एक तो खुशबू जो लास्ट टाइम आए नहीं थे, और राहुल. राहुल, जस्ट वांट टू हियर अबाउट यू, लाइक यू नो व्हाई यू आर इन दिस सेशन, व्हाट इज योर लाइक यू नो व्हाट यू डू जनरली. थोड़ा सा एक मिनट में आप अपना ब्रीफिंग दे दीजिए. राहुल शर्मा. और आप अपना फेस दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है. शायद आवाज नहीं आ रही राहुल कुछ. ओके खुशबू. राहुल जी तब तक अपना माइक फिक्स करें. खुशबू प्रजापत. ओके राहुल, राहुल वी कैन हियर यू नाउ, वी कैन सी यू एटलीस्ट, बट वी कांट हियर यू. नमस्ते राहुल जी. You're not audible to us. I think there is some network issue. Hello. 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 Yes, sir. Good afternoon. I can hear you. Yes, tell me. Yes, sir. कहाँ से हैं आप और what do you do generally and योगा में आने का reason? Sir, I'm from Himachal Pradesh. Okay. So I'm studying in physical education. Can't hear you, man. I think there is some problem with your network as well. So we are in the same boat. Right. Chalo. Anyways, I'm seriously. I mean, if others are able to hear, it's okay. But मुझे तो आवाज नहीं आ रही है. थोड़ा सा loud हो जाओ फिर. Hello. हाँ हाँ बोलो. Yes, sir. I'm from Himachal Pradesh. Okay. Himachal, sir. Himachal Pradesh. Get it. बहुत ही अच्छी जगह है. Yes, sir. So I'm doing graduation in physical education. Okay. And why you have chosen this yoga volunteer or TTC course? Sir, I play football actually. Okay. तो सर उसी की वजह से मैं बॉडी फिटनेस के लिए योगा वॉलंटियर मैंने पार्टिसिपेट किया. All right. Very good. चलो. Good path that you have chosen and all the very best. Now we will go to Khushbu. Where is Khushbu? खुशबू आप अपना कैमरा कैमरा भी चालू कर दो. ओके.
Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो आप क्या करते हो, योगा क्यों चूज किया आपने, थोड़ा सा अपना ब्रीफ दे दो सारे जन को। I'm recently pursuing in third year BCom, ओके, गुड। and I choose yoga for I want to be a fitness. I have some interested in fitness training. Like ओके ओके, गुड। I do yoga since childhood, but I want some briefly want to and some down. I don't want to know about this all yoga, why we do yoga, and what from where this yoga comes. I want to know all about this, and Very I nice, choose very nice. to know. I think you are at on the right track and very I mean initial stage I would say, मतलब ये यही टाइम से अगर किसी ने योगा चूज कर लिया, I mean to study, then we have long way to go. And योगिता जी आपका बैकग्राउंड काफी सही लग रहा है। I mean you don't need to switch off your camera because बच्चे लोग जो खेलते रहते हैं तो this is what the lively environment we see. Okay, so we'll begin our first जो टॉपिक है आज का, that is introduction to major schools of yoga. Okay. Hello, sir. Hello. Yes. This is Aparna here. Even I joined it today. Oh, I'm so sorry, just wanted to Aparna give ji. you I'm really sorry. आप भी अपने बारे में बताइए। कैमरा शुरू No, करिए। no issue. Just wanted to let you know. Yeah. So, am I visible? Yes, you're visible completely. Okay. So, my name is Aparna and I stay in Mumbai. So, I've completed my graduation in BMS Management Studies. Okay. And during this lockdown, I found it yoga very much important. So I started doing yoga with all the asanas because it was too much fascinating to do asanas and post it. Right. So it became my daily routine. So Okay. then afterwards, as I do it very nicely, my sister, she just suggested me to go for something practical course, go for certified. So I just thought to give it a chance and get certified. Why not getting one more thing in my CV? Then it will be nice for me and as well as for my career. So Very good. I just wanted to go for it. Okay. Where do you stay in Mumbai? In Mumbai, I stayed Vasai. 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 Okay. I mean, Western Line. couple of years ago, I used to stay in Virar, but then somehow I could not manage there because I had to travel across, I mean, Mumbai. तो Yeah, ट्रेन के धक्के Mumbai खाना traveling थोड़ा is सा like नागवार गुजरा, so I came back to खार. Anyways, चलो पर्सनल डिस्कशन हो गई, अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक which is introduction to major schools of yoga. ठीक है ना? Okay. तो ये स्कूल जो है Okay. योगा from where yoga has come from. ठीक है ना? So there are different schools Okay. and major schools are ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पतंजलि which is called राज योग and हठ योग and मंत्र योग. तो ये 6 स्कूल्स अपने इसमें सिलेबस में दिए, सिलेबस में इनके 5 इनफैक्ट 5 ही दिए, मंत्र योग नहीं है. सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज योगा. अब ये क्यों जरूरी है? बिकॉज आफ्टर ऑल जो अल्टीमेट गोल ऑफ योगा क्या होता है? लिबरेशन होता है. ठीक है ना? हम तो मतलब फिजिकल अपीयरेंस को थोड़ा सा मस्त बनाने के लिए और थोड़ा मेंटल हाइजीन के लिए योगा कर रहे हैं, मतलब तो विच इज अ गुड थिंग, बट end should be like the liberation, मोक्ष. अभी मोक्ष का थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगा, we will discuss later on, but जो कॉम्पिटिटिव और मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करने के लिए हम योग करते हैं. there could be different ways. it could be राज योग जो कि हम कर रहे हैं, हठ योग जो कि हम कर रहे हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एसोसिएट रहता है इन सबसे. ठीक है? सो we will be giving you a brief detail about what all these yogas follow. Okay, so let's go to paths of yoga. Abhi dekho, schools in the world of yoga based on different philosophies क्या क्या है? जैसे सांख्य philosophies. आप योगा में धीरे धीरे आगे जाओगे ना तो you will come to know ये क्या होता है. वैशेषिका, न्याय philosophy, फिर ये जो आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, ये सारे जो दर्शनास होते हैं वो डिफरेंट फिलोसॉफी से आए हुए हैं. वेदांत एक फिलोसॉफी है. वेदांत के बारे में हमने पिछले लेक्चर में सुना था कि वेद के बाद जो आए उपनिषद, दे आर कॉल्ड वेदांत. तो वेदांत इटसेल्फ इज अ फिलोसॉफी. ठीक है? और वेदांत फिलोसॉफी से ये सारे जो हम जो डिस्कस करने वाले वो मैक्सिमम वो चीजें वेदांत फिलोसॉफी से आई हुई है. ओके, क्या होता है ना, why these philosophies has been chosen by human, because we are coming from different background. ठीक है ना? So much diversity of thoughts, feelings, and would find several paths to their spiritual development in the realm of yoga.
तो योग मतलब जो लिबरेशन है उसको चूज करने के लिए शायद हो सकता है कि हमारा इंडिया में एक अलग कल्चर है, थोड़ा आगे जाओ इंडिया में भी आप चूज करोगे तो लाइक हर 200-300 किलोमीटर में यू फाइंड डाइवर्सिटी इन द कल्चर. सो दैट्स हाउ पीपल चूज दिस Yes. पाथ ऑफ योगा. एंड जैसे आप देखोगे तो जैन भी है, तो जैन की फिलोसॉफीज अलग है, महावीर बुद्धा की फिलोसॉफीज को फॉलो करते हैं लोग. तो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफीज है, बट द गोल इज वन. ठीक है, सो दे फाइंड different ways to get into that liberation thing. एक माउंटेन जो होता है ना, उस माउंटेन को चढ़ने, पीक जो होता है ना माउंटेन पे चढ़ने का, उसके लिए देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंट वेज, लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं हम? माउंटेन के पीक पे. सो अल्टीमेट गोल इज माउंटेन का पीक, बट द वेज आर टोटली डिफरेंट. Yet just as a mountain top can be reached by taking two different routes. Okay, all paths in the spiritual realms leads to the same goal. Goal अपना एक ही होता है. Okay, आज की दुनिया में, आज के जो वर्ल्ड में जो गोल है हमारा माइंड को मैनेज करना, कहीं ना कहीं जो माइंड हमारा इधर उधर स्ट्रेस से भर रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, उसको ये समझाना है कि दिस इज रियल, दिस इज अनरियल. उस वो डिफरेंशिएट, मतलब वो डिफरेंशिएट को कहीं ना कहीं अवेयर होना is one of the biggest challenge which we are coming to resolve after coming in yoga, hopefully. Many people find the way as they progress through their lives. More than one path addresses their spiritual life. This is very important. ऐसा नहीं है कि आपने मतलब राजयोग चूज कर लिया तो आप राजयोग में ही रहने वाले हो और राजयोग के थ्रू ही आपको लिबरेशन की प्राप्ति हो जाएगी. इट इज नॉट लाइक दैट. आप हो सकता है आने वाले टाइम में आपको राजयोग करते करते, जैसे मेरी कहानी बताऊं तो मैं आसन में आया. आसन मतलब कि हठयोग और राजयोग का एक, राजयोग में तो चलो आसन भी नहीं, हठयोग से शुरुआत करी. धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बिल्टअप होता गया. आई एम गोइंग टुवर्ड्स राजयोग. ठीक है, अब राजयोग से अभी मेरे को ज्यादा मजा आता है. जैसे मैं मुंबई में था तो इस्कॉन में जाना और वहां पे कीर्तन करना, मतलब ठीक है. एक टाइम पे लाइफ कैसी रही, आप सडनली आप अपने आप को उस तरफ जा रहे हो. ज्ञान योग मतलब कि थोड़ा सा लेट्स से कि चीजों का क्या होता है क्या नहीं होता है, व्हाई, व्हाट इज योगा और व्हाट इज दिस वर्ल्ड ऑल अबाउट, वो जो जानने की क्यूरियोसिटी है वो पैदा हो रही है. तो कहीं ना कहीं ज्ञान योग भी हमारे रास्ते में आ रहा है. ठीक है ना, पाथ में आ रहा है. भक्ति योग की जैसे मैंने बात कर दी कि हम कीर्तन करते हैं, वो सारा. कर्म योग तो हम कर्म तो अपने अपने कर रहे हैं, तो कर्म योग में एवरीवन. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स व्हिच अ पर्सन कम अक्रॉस ड्यूरिंग देयर लाइफ. अब ये पाथ जो है वो आपको सबको दिख रहे हैं. देयर आर 6 पाथ्स व्हिच इज बीन शोन इन आवर सिलेबस. उसमें से भी एक पाथ नहीं है लेवल 1 में. ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, राजयोग है, हठ योग है. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स. अभी जो पूरा हफ्ता है ना आपका वो ऐसे ही चलने वाला है, थियरी वाला. सो डोंट गेट बोर्ड योरसेल्फ. थोड़ा नींद आता है तो अपने आप को मतलब अपनी जो क्या बोलते हैं ना, फोकस अपना अपने ब्रीदिंग के ऊपर लेके जाओ. डीप ब्रीदिंग करो तो आपकी नींद उठ जाएगी. This is a trick which I used to adopt. Okay, we are at Jnana Yoga now. अभी ज्ञान नहीं बोलेंगे, इसको ज्ञान बोलेंगे. Now we are in yoga, so this is called ज्ञान. ज्ञान योग, संस्कृत में इसको ज्ञान. ओके, और ज्ञान की स्पेलिंग क्या होती है? GYAN. सेम थिंग. अब आप संस्कृत में आप देखोगे तो इसको ज्ञान योग. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ज्ञान इज नथिंग बट नॉलेज. नॉलेज को ज्ञान बोलते हैं. So this is also called yoga of wisdom. It shows the path of self-realization through discerning the real. So इसमें कैसा है ना कि ज्ञान योग में जाने के बाद इंसान को एटलीस्ट ये क्लैरिटी मिल जाती है कि दिस इज ट्रू, दिस इज अनट्रू, दिस इज रियल, दिस इज अनरियल. वो जो एक असमंजस की स्थिति इंसान की होती है ना, वो इसमें आने के बाद खत्म होनी शुरू हो जाती है. अब इसमें अभी थोड़ा सा डिटेल में हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे तो उससे आपको और आइडिया आ जाएगा कि हाउ वी कैन गेट इनटू दिस. ज्ञान योग इज स्ट्रिक्टली नॉन ड्यूअलिस्टिक, अद्वैत वेदांत. अभी इसमें थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं तो फिलोसॉफीज में ना, वेदांत में भी अद्वैत होता है, द्वैत होता है, और एक और है जो मतलब कि इसमें क्या होता है ना, ये मतलब थोड़ा सा ब्रीफ आपको मैं दे दूं ना. तो द्वैत, अद्वैत और वन मोर नेम इज देयर. आई विल जस्ट गिव यू दैट नेम, जस्ट होल्ड ऑन. ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, मीमांसा. हाँ भरत जी सर. सॉरी,
हाँ, इसमें से सर इसको द्वैताद्वैत बोलते हैं। द्वैत एक अद्वैत द्वैत- और एक और है इसमें। फर्स्ट द्वैत, सेकंड अद्वैत एंड थर्ड द्वैताद्वैत, शायद। ओके चलो, एक और नाम है, मैं आपको शेयर करूंगा। तो उसका फिलोसॉफी क्या है पता है, ये संसार सिर्फ एक है, ठीक है ना। दे बिलीव ऑन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप, मैं, प्रकृति, पुरुष, एवरीथिंग इज रिलेटेड एंड वो आता है एक के सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। आधा इसमें अपने को समझने की जरूरत नहीं है। अद्वैत का मतलब होता है कि देयर इज ड्यूअल, मतलब अद्वैत वेदांत के ऊपर फिलोसॉफी। नॉन ड्यूअलिस्टिक मतलब कि दो नहीं है। अब वो नहीं बोल रहा एक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा। आप थोड़ा सा इसको स्टडी करोगे तो आपको भी इसमें आइडिया आएगा। दे आर नॉट सेइंग दैट कि दो नहीं है, दे आर नॉट सेइंग दैट वन है, बट दे आर सेइंग दो नहीं है। अब समझने वाला तो वही समझेगा, दो नहीं है मतलब एक है, बट नहीं, दो नहीं है। नॉन ड्यूअल वेदांत के ऊपर, नॉन ड्यूअलिस्टिक वेदांत के ऊपर जो बिलीव करते हैं ना, अद्वैत वेदांत के ऊपर, ये सेज कि ट्रूथ है और अनट्रूथ है, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे वो ट्रूथ होता है, रियल अनरियल। तो एंड ऑफ द डे वो रियल होता है, ठीक है। सो वो ये नकार भी नहीं रहे हो कि ड्यूअल नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे आर, ये भी नहीं बोल रहे कि सिंगल है, बट दे आर एट द सेम टाइम सेइंग दैट दिस इज नॉन ड्यूअल। और द्वैत वेदांत में बोलते हैं सोल है, आत्मा है और परमात्मा है, देयर आर टू थिंग। अद्वैत में वो एक सिंगल में चला जाता है। सो दिस इज वेयर, आई मीन, अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो ज्ञान योग जो है ना, वो नॉन ड्यूअलिस्टिक वेदांत के ऊपर विश्वास करते हैं। पाथ दैट encourage that yogi to separate the real from the unreal and self from the non-self. This is written here. Since the mind is considered as part of the unreal, one must use the mind to outwit the self. Okay, fine. So ये जो माइंड है ना अपना, ये माइंड कहीं ना कहीं हमको जो अनरियल की जो स्थिति है ना, वहां पे जाने के लिए मजबूर करता है। सो वी हैव टू wisely use our mind, and we make sure or we understand that there is one thing, okay, we cannot associate with any other thing. अभी फिर से हमें बता रहा हूँ कि ये जो आगे वाली स्लाइड्स आएगी ना, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इट इज एवरीथिंग विच इज डिपेंड्स ऑन आवर माइंड। सो ज्ञान योग के अडॉप्ट करने के बाद हमें वो जो एक जो क्लैरिटी मिलती है, जिसमें रियल और अनरियल का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। ओके, जो भी हमारे को जो बाहर के जो वर्ल्ड में दिखता है, in the material world, which is not permanent, and we should understand that प्रिंसिपल। अगर आप इसका ज्ञान योग का मानेंगे तो अल्टीमेटली मेडिटेशन ही है, जो कि हम सारे योगा में देखेंगे तो मेडिटेशन इज द लास्ट, एंड देन यू गो टुवर्ड्स समाधि। प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ज्ञान योग। ज्ञान योग ये आपको याद रखना है, बिकॉज इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। प्रीरिक्विजिट ऑफ ज्ञान योग में ऐसा है कि एक जो 4 पिलर है ना, वो पिलर्स को आपको क्रॉस करने के बाद यू कैन गो टुवर्ड्स ज्ञान योग। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट मतलब एक बुक उठा ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया कि आई एम गोइंग टू ज्ञान योग, नहीं। तो यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। दीज प्रैक्टिसेस बिल्ड अपॉन ईच अदर एंड दस शुड बी प्रैक्टिस इन सीक्वेंशियल मैनर। सो सीक्वेंशियल मैनर में ही ये प्रैक्टिस होगी। इनको क्या कहा जाता है? 4 पिलर्स ऑफ योगा। अगर क्वेश्चन आया कि 4 पिलर्स ऑफ योगा किसे कहते हैं, तो आपको ऑप्शंस में दे दिया विवेक, वैराग्य, साधना चतुष्टय, और एक कोई ऑप्शन डाल दिया। सो ऑब्वियसली यू शुड रिमेंबर दैट 4 pillars of knowledge is called sadhana chatushtaya. Okay, and this is the step towards achieving liberation in jnana yoga. ओके, तो देखो अभी क्या है ना, इसमें ये लिबरेशन को हमने बोला है, लेकिन ठीक है, हम थोड़ा से ये भौतिक जीवन वाले इंसान है, हमारा परिवार है, उनको पालना पोसना है, नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पहाड़ पे जाके ये लिबरेशन करने वाले नहीं है, बिकॉज ये है जो है वो है, फैक्ट इज फैक्ट। सो ज्ञान योग हेल्प अस टू कल्टिवेट स्पिरिचुअल इनसाइट्स। हमको स्पिरिचुअल जर्नी में एक बार एटलीस्ट वो इनसाइट अपने को पता चलती है, ठीक है ना। और जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम जो सफर कर रहे हैं ना, उसको कहीं ना कहीं कम करता है, बिकॉज वी कम टू नो द रियलिटी। रियलिटी इज दिस, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई तुम्हारा काम नहीं हुआ या XYZ रीजन से आप स्ट्रेस्ड हो, तो आपको एटलीस्ट अपना मेंटली इतना चीज पता है कि ठीक है, इट हैपेंस, दिस इज लाइफ। ओके, आप उसमें अगर मान लो अपने आप को इन्वॉल्व करके आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे,
ठीक है, तो यूर आई मीन ब्लेमिंग योरसेल्फ, आप अपने खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो. सो दैट इज वेयर ज्ञान योग हेल्प यू टू रिड्यूस वन सफरिंग एंड डिससैटिस्फैक्शंस ऑफ लाइफ. ठीक है, एंड that's what is more important for us rather than going into liberation. मुझे पता है आप सब में से कोई भी लिबरेट नहीं होना चाहता है, जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है. सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल इनसाइट एंड रिड्यूस वन सफरिंग एंड डिससैटिस्फैक्शन. चलो, तो ये जो साधना चतुष्टय है ना, चार, वो चार क्या क्या है? पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षट संपद एंड चौथा है मुमुक्षुत्व. ये चार याद रखना है. अगेन आपको इसमें से भी क्वेश्चन आता है. विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक हम हिंदी में समझते हैं ना, विवेक का इस्तेमाल किया करो जरा. मतलब आपका नॉलेज के बेसिस पे आप किसी चीज को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो. व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज अनट्रूथ. तो आपका जो अवेयरनेस है उस हिसाब से आप ये बोल सकते हो ना कि ये सही है, ये गलत है. ठीक है ना. सो दैट इज कॉल्ड विवेक. वैराग्य इज कॉल्ड डिटैचमेंट. मतलब आप क्या होता है, जब आपके पास वैराग्य की बात, डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि हम ना बहुत सारी चीजों से इतने कनेक्टेड होते हैं ना इमोशनली कि वी कैन नॉट डिस्कनेक्ट अवरसेल्फ. और जब तक वो भावना आपके अंदर पैदा नहीं होगी, आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ऑब्वियसली आप अपने बच्चे हैं, मम्मी पापा है, वाइफ है, फैमिली है, दूसरी चीजें हैं, उसमें है मतलब एक कनेक्शन रहता है. लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप कंप्लीटली मतलब इतने कनेक्टेड हो कि आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे उससे. तो फिर आपको ज्ञान योग में जाने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है. और सबसे पहली स्लाइड में मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बोला था कि दिस इज इन सीक्वेंस. इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स ज्ञान योग, यू हैव टू फॉलो दीस 4 प्रिंसिपल्स, प्री रिक्विजिट्स. तो वैराग्य, आपको डिटैचमेंट की भावना धीरे धीरे पैदा होनी चाहिए कि ठीक है, ये मतलब है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे बाल बच्चे हैं, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ. ठीक है ना. आपकी कार है या कार चली गई या किसने कर दिया तो आप मतलब एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अपने आप को. ठीक है, यू बैलेंस योरसेल्फ, इट हैपेंस, दिस इज लाइफ, नथिंग इज परमानेंट. तीसरा हो गया षट संपद. षट संपद इज 6 वर्च्यू दैट यू हैव टू फॉलो. क्षमा, दमा, उपार्थी, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान. अभी क्या ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, इन केस क्वेश्चन आता है किधर किधर ऊपर नीचे कर दिया तो आप यू माइट लूज द मार्क्स. सो क्षमा इज नथिंग बट कामनेस. तो कैसा होता है ना, जब आप डिटैच हो जाते हो ना कोई चीज से, आप वैसे ही कूल हो जाते हो. ओके. दमा इज कंट्रोलिंग योर सेंसेस. कोई चीज अच्छी लग गई तो उस तरफ आप अट्रैक्ट हो गए हो, तो उसमें भी आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए. उपार्थी, यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट इन फेवर ऑफ योर धर्मा. ठीक है ना. धर्मा इज नॉट हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, बट योर कल्चर. ठीक है ना. जो हमारी परवरिश हुई है उसमें जो हम सीखते हैं, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में कोई चीज जा रही है एंड स्टिल वी वांट टू वी आर किसी को हर्ट करना है, ये हमारा धर्म नहीं है. ठीक है ना. तो वो सारी चीजों से हम अपने आप को विड्रॉ करेंगे. तितिक्षा, श्रद्धा एंड समाधान. तितिक्षा का मतलब है, मतलब कि कुल मिला के एक साहस आपको होना चाहिए. मतलब कि कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो. श्रद्धा इज फेथ, whoever guru you have chosen. ठीक है ना. क्वेश्चन मार्क मत लगाओ आपके नॉलेज के हिसाब से. have faith in him. अगर आपने किसी को चूज किया है मतलब आपने कोई डिसीजन सही लिया होगा. ठीक है ना. so have faith in whatever you are studying. कुछ हर चीज के पीछे ये होता है कि आजकल की जनरेशन में हो गया है कि हम इतने मतलब वो हो गए, कंफ्यूज हो गए हैं कि we raise questions for each and everything. It is good so that you can gain your knowledge, but at the same time when you have chosen a particular path, you have to have that faith towards that. So आपको अगर कोई गलत knowledge भी दे रहा है तो you might or you will get that right knowledge to pursue that particular path. And samadhan is the ultimate concentration, focus. Whatever you have learned, just focus on that. That is called samadhan. So ये षट संपद आ जाता है. ठीक है. और real meaning of samadhan, like Momo- solution. क्या क्या Samadhan, the real meaning is solution. Yeah. समाधान और सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, क्योंकि when you focus on something, concentrate on something, ठीक है ना, you get to know about that particular thing. ओके. आप फोकस करते हो उस चीज का, इसका मतलब है कि उसकी डिटेल में आप जाते हो. आप जब डिटेल में जाते हो तो उसका रियल मीनिंग समाधान ही निकलता है. ठीक है ना, वो पर्टिकुलर चीज का. मुमुक्षुत्व का मीनिंग जो मैं है आपको बताता हूँ. And then we'll go to
का डिस्कशन हम करते हैं बाद में. We are going to next slide. ज्ञान योग को प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू अप्लाई 3 स्टेप्स, ठीक है ना. 3 कोर प्रैक्टिसेस ऑफ ज्ञान योग, मतलब ये 3 प्रैक्टिस आपको ज्ञान योग को अडॉप्ट करने के लिए करनी पड़ती है. आफ्टर वन हैज स्टडीड एंड सक्सेसफुली प्रैक्टिस दोस 4 पिलर्स. पिलर्स कौन से? साधना, चतुष्टय. ओके, then you are considered ready to begin the 3 core principal practices of Gyan Yoga, and that is Shravan, Manan and Nididhyasana. श्रवण का मतलब क्या है? हियरिंग. आप कहीं पे भी जैसे कि लेट्स से किसी गुरु के पास बैठे हो या फिर कुछ सुन रहे हो ज्ञान की बातें, ठीक है ना, तो यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट, ठीक है ना, आप सुन रहे हो. श्रवण का मतलब सुनना. हिंदी वाले हम इंडिया में हैं, सो हम फॉर्चुनेटली कि हमको ये सारे जो वर्ड्स हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं ये हम समझ सकते हैं. जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफी दिक्कत होती है ये सब वर्ड्स को पूछने में. तो श्रवण का मतलब किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, बट हियरिंग. ओके. मनन. मनन इज थिंकिंग, मतलब आत्मचिंतन करना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना. मनन करना, जब सुन लिया उसको अंदर अपने अंदर डाला एंड यू आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग दैट थिंग्स इन योर इनसाइड यू. एंड निधिध्यासन इज अगेन फोकसिंग ऑन दैट. ओके, कंसंट्रेटिंग मतलब मेडिटेट करना उसके ऊपर, ठीक है. सो दीज आर द 3. ये आएगा आपको क्वेश्चन में कि विच इज नॉट द कोर प्रैक्टिसेस ऑफ ज्ञान योगा. श्रवण, साधना, चतुष्टय, क्षमा, दमा. तो क्या है? श्रवण उसमें आता है. विच इज नॉट बोला है मैंने, ऑब्वियसली 3 आ गया, लेकिन विच इज द प्रैक्टिस, विच इज आउट ऑफ द 3 प्रैक्टिसेस ऑफ ज्ञान योगा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर श्रवण, मनन और निधिध्यासन. और नॉट आया तो ये 3 डाल के एक कोई और ही कोई भलती चीज डाल देंगे विच यू हैव टू. ओके, अब ये आपका आ गया. इसमें थे हम लोग मुमुक्षुत्व. मुमुक्षुत्व का मतलब क्या होता है? जो 4th साधना चतुष्टय का मतलब है, मतलब कि जो हंगर होता है लिबरेशन, उसको बोलते हैं. अब लिबरेशन का हंगर आपके अंदर नहीं है तो शायद ज्ञान योग में हमें दिक्कत आएगी. सो चार जो प्रैक्टिसेस है सीक्वेंस में अपने को लर्न करनी है, उसमें से मुमुक्षुत्व इज लास्ट, ठीक है. विच मीन्स कि नहीं, मुझे कुछ तो हासिल करना है. तो ऐसा नहीं है कि मतलब लिबरेशन का अपने दिमाग में ले लिया मतलब आप घर बार छोड़ के चले जाओगे या फिर आपका वो, लेकिन एक वो हंगर जो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा. लेट्स नो अबाउट दिस इज व्हाट इज ज्ञान योग. तो ये दिस इज हाउ एक जो होता है ना, एक नेचर आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाएगा. वो चारों चीजें होने के बाद आप खुद श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे. और अब तो लोग क्या है ना, यंग एज में भी करना शुरू कर दिया, बिकॉज दे एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स एट द इनिशियल ऑफ देयर एज ओनली. सो हम बोलते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति, जो दादा दादी होते हैं उनको ये सारी चीजें सुनाने पड़ते हैं. अब लोग धीरे धीरे ना पहले ही सुनते हैं एंड दे बैलेंस देयर लाइफ. ये स्पिरिचुअल जर्नी इज आल्सो नेसेसरी, एट द सेम टाइम जो मैं कर रहा हूँ वो भी नेसेसरी, ठीक है ना. सो दैट्स हाउ. वो जमाना नहीं रहा है कि आप मतलब पुराने में जाओगे, हो जाओगे 50-55 साल के हो जाओगे. अभी तो 50-55 साल हम जी ले, वही बड़ी बात है. तो वो नहीं है कि उसके बाद दादा दादी को आप गीता पढ़वा रहे हो या सब कुछ सुनवा रहे हो. तो कीप लर्निंग अबाउट दिस. तो ज्ञान योग के बाद आपका आ जाता है भक्ति योग. तो ज्ञान योग में 4 चीज याद रखनी है. पहली तो 4 जो पाथ है सीक्वेंशियल मैनर में आपको वो चूज करने हैं, ठीक है. षट चंपक आपको याद रखना है. एंड देन हाउ यू कैन प्रैक्टिस ज्ञान योग आफ्टर फॉलोइंग दैट 4 पाथ. तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन. इसका मतलब क्या होता है ये भी हो सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय निधिध्यासन? तो उसमें 3-4 ऑप्शंस दे देंगे. सो मेडिटेशन इज द रियल मीनिंग ऑफ निधिध्यासन. लेट्स गो टू भक्ति योग. Okay, so what is bhakti? Bhakti is nothing but, I mean, bhakti has come from the root word bhaj, which means to be attached to God. भी भगवान को हम सब मानते हैं, ठीक है. तो उसकी तरफ अटैच हो जाना इज कॉल्ड भक्ति. मतलब कि उनके लिए सब कुछ न्योछावर कर देना. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ति. भक्ति डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. दैट वी विल बी लर्निंग अगेन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. बट ओवरऑल जो भक्ति का मीनिंग होता है कि अपने आप को भगवान के लिए अटैच करना, ठीक है. भक्ति इज लव ऑफ लव स्टेट्स. देयर इज नो सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस हियर. मतलब किसी को कोई मतलब वो नहीं रहती है कि भाई मुझे, हाँ बट होता है मतलब आगे. अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राइंट इसमें है कि भक्ति का मतलब सेल्फिश एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन लोग भक्ति उसके लिए भी करते हैं आजकल, ठीक है. मुझे ये चाहिए, इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं. देयर इज नो फियर एज, आई मीन इसमें बोला गया है कि एक भक्त जो होता है
कोई डर नहीं होता है फिर बाद में, जब वो कंप्लीटली उसमें चला जाता है। ठीक है, परम प्रेम रूप, परम प्रेम रूप को वो एक बार देखना शुरू होता है। परम प्रेम रूप मतलब कि अल्टीमेट जो कॉन्शियसनेस होता है ना, उसको ही देखता है, वो विजुअलाइज करता है उस भगवान को, जो जिसको भी वो मानता है, वो अपने मेंटल स्टेट में उसको पाता है। इंटेंस डिवोशन एंड सुप्रीम अटैचमेंट टू गॉड। ठीक है, ये थोड़ा क्या हो रहा है ना कि स्पिरिचुअल ज्यादा हो रहा है, और जिस तरह से आप सोच रहे होंगे कि हम योगा का टीटीसी लेवल 1 करने आ रहे हैं, लेकिन इट इज नेसेसरी टू नो ऑल दिस, दैट्स व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग। और हमारे पास 3 महीने पड़े हुए हैं जिसमें हम प्रैक्टिस और वो सारी चीजें करने वाले हैं। तो लर्न दिस इज द बेस, दिस इज द कोर थिंग थ्रू विच वी कैन गो टुवर्ड्स राजयोग। Yes, ओके, sure. अभी आ जाओ आप सकाम्य भक्ति और निष्काम्य भक्ति। 2 टाइप की भक्ति होती है, कैटेगरीज अलग अलग है। ठीक है, तो सकाम्य भक्ति, निष्काम्य भक्ति, हम जो करते हैं वो सकाम्य भक्ति करते हैं। हे भगवान मुझे ये दे देना तो मैं आपके लिए ये करूंगा। ठीक है ना, वो वाली सकाम्य भक्ति, मतलब कि डिवोशन विद डिजायर ऑफ और मटेरियल गेन। कुछ चाहिए तो आप भक्ति करते हो, गिव एंड टेक वाला मतलब मोड पे हम चलते हो। ठीक है ना, एंड हियर आल्सो लाइक, सो दिस इज आल्सो अ भक्ति। ऐसा नहीं है कि मतलब ये गलत है। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी लोगों को मतलब वो मटेरियल वर्ल्ड से इतना अटैचमेंट हो गया है, वो वैराग्य के भाव से, वैराग्य का भाव नहीं अपना पा रहे, तो ठीक है, उनको मतलब उसी तरह से चलेगा। तो उसमें भी ना लॉर्ड विल सर्टेनली गिव यू इफ योर भक्ति इज इंटेंस। ओके, निष्काम्य भक्ति पे आते हैं अभी हम। Nishkamya योर bhakti. भक्ति शुड ऑलवेज बी निष्काम्य भक्ति। ठीक है ना, भक्ति. निष्काम्य भक्ति का मतलब होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली सरेंडर्ड हो गया हूँ भगवान के लिए। दिस इज व्हाट इज रेकमेंड शुड बी। ठीक है ना, ठीक है, आप सकाम्य भी यूज कर सकते हो, निष्काम्य भी यूज करते हो। योर हार्ट विल बी प्योरिफाइड एंड द डिवाइन ग्रेस विल डिसेंड अपॉन यू। ठीक है, ये दीज आर द बेनिफिट्स व्हिच इज बीन शोन। Divine attributes like wisdom, renunciation, power, etc. All the devotees of the Lord will give you. He will give you darshan. He will help you to dwell on Him. He will give you all the divine aishwaryas. अब ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर निष्काम में भक्ति आप करते हो ना, तो मतलब ये होता है कि आपका कोई मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जब इंसान का कोई स्वार्थ नहीं है, तो ही ऑटोमेटिकली बैलेंस हिमसेल्फ। ठीक है ना, उसको मतलब उसका कोई अटैचमेंट नहीं है ज्यादा दूसरी चीजों से कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। लोग होते हैं बहुत सारे जो जाते हैं भगवान सबको खुश रख। ठीक है ना, तो वो दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड, तो सबको साथ में लेके चलने वाले लोग होते हैं। वो मेंटली अगर उनको तुम आइडेंटिफाई करोगे एंड डिफरेंशिएट करोगे, तो दे आर मोर बैलेंस्ड पीपल। ठीक है, रादर देन एक जो होता है कि 16 सोमवार करूंगी तो मुझे एक अच्छा पति मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, दैट इज सकाम्य भक्ति, और वो भी एक सही है कुल मिला के उनके लिए, और भगवान खुश भी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो एक ये हो गया सकाम्य और निष्काम। ओके, नाउ द अदर क्लासिफिकेशन ऑफ भक्ति इज अपराभक्ति एंड पराभक्ति। ये दोनों चीजें, सकाम्य निष्काम्य के लिए अलग क्वेश्चन आ सकता है, परा और अपरा के लिए अलग आ सकता है। तो अपराभक्ति क्या है? परा मतलब क्या होता है? परे, परे मतलब अवे, दूर, अवे. ठीक है, दूर, हाँ अवे। तो अपरा इसका ऑपोजिट है, मतलब पास, मतलब कि जो इंसान मतलब जो मूर्ति पूजा और सब करता है ना, दैट इज पराभक्ति। जो मतलब स्टैच्यू है उनके सामने, उनको पूजा कर रहे हैं, उनको फूल माला चढ़ा रहे हैं, वो सारी जो चीजें हैं, उनको मिठाई चढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपराभक्ति। ठीक है, मंदिर में जाके घंटी बजाई और सरेंडर किया गॉड के सामने, दैट इज ऑल अपराभक्ति। ठीक है, पराभक्ति इज ऑपोजिट टू दैट। जस्ट मेडिटेट एंड इमेजिन, मैं भगवान के सामने बैठा हुआ हूँ, वो विजुअलाइज गॉड, आपको जो भी चढ़ावा चढ़ाना है, जस्ट विजुअलाइज दैट कि भगवान ये आपके लिए, आपको अर्पित है। आप मार्केट में गए, मिठाई की दुकान देखी आपने, और आपने आंखें बंद कर ली कि मिठाई में से मैंने भगवान को भोग लगा दिया, मतलब दूसरे की दुकान से भी आप भोग लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड पराभक्ति। इन अ वे इट इज गुड, खर्चा भी नहीं हो रहा है ना, Less expensive. राइट। The Bhakta here regards the Lord as a supreme person who is immanent in that image and who can appreciate thought then. So that's the meaning, overall meaning of parabhakti. Now let's aparabhakti. Now let's go to parabhakti. Parabhakti का मैंने explain कर दिया कि Lord जो है उसका कोई मतलब आपको अपने दिमाग में ही मतलब विजुअलाइज करना है भगवान को, एंड इट इज नॉट कि आपको भगवान में मतलब वो मूर्ति को ही देखना है। यू कैन वॉच नेचर,
You can watch anything, but you are just praying to the ultimate जो energy है उनको, and you're doing that kind of work. Offer food to God mentally, and food will be purified. When you pass through a garden of flowers, mentally offer all the flowers to the Lord in archana. तो देखो अभी कैसा होता है ना, कोई खाना खाने के लिए बैठा है और उसने है ना अपना खाना ले जाके भगवान के मंदिर में जाके रखा, तो वो क्या हो रहा है, अपरा भक्ति है, ठीक है। लेकिन कोई खाना खाने के लिए बैठा है और उधर ही हाथ जोड़ के उसने आंखें बंद कर ली और विजुअलाइज कर रहा है कि भगवान इसमें से भोग ले लो आप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपरा भक्ति। That's how we can understand. ओवरऑल थोड़ा मोटा मोटा अपने को इसको समझने की जरूरत है। अब क्या होता है ना, लोगों के भाव भी होते हैं ना, भक्त जो होते हैं ना उनके भाव कैसे होते हैं? These bhavas or feelings are natural to human being and so these are easy to practice. एक होता है शांत भाव वाला भक्त। भक्त के कितने भाव होते हैं? एक होता है शांत भक्त होता है, जैसे भीष्म जो है, भीष्म को शांत भक्त बोलते हैं। दास्य, दास्य भाव इज दास, जो दास हो जाता है। इसको आप एग्जाम्पल में ले लो हनुमान जी, राम के भक्त, ठीक है। सखा, सख्य भाव, ठीक है, सखा इज फ्रेंड। सखा भाव किसका था? राधा, कृष्ण एंड अर्जुन, कृष्ण राधा। ठीक है। वात्सल्य भाव किसका था? एक माँ और बेटे का जो भाव रहता है, कृष्ण और यशोदा का, यशोदा माँ। हाँ। माधुर्य भाव इज राधा कृष्ण, जो लव है। Okay. ओके, सो दिस इज हाउ Hmm. यू कैन अंडरस्टैंड कि भक्त के जो अलग अलग भाव होते हैं। Remember it. ये जैसे कि मतलब शांत भाव जो है वो कभी जंप नहीं करेगा, डांस नहीं करेगा, एकदम शांत रहेगा। ही इज नॉट हाईली इमोशनल। दीज आर द फीचर ऑफ शांत भाव। जैसे भीष्म जो है was शांत भक्त, he was called शांत भक्त। सिमिलरली दास्य में हनुमान जी जो थे वो मतलब श्री राम के दास बन के थे, मतलब कि उनके सिवा कुछ नहीं, उनकी ही सेवा करनी कुल मिला के। ही इज अ पर्सन, तो वो दास बन गए थे, मतलब हम अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। देन सखा भाव में अर्जुन और कृष्णा का ले लो आप, वो साथ में खाना खाने बैठते थे। ही यूज्ड टू टॉक विद कृष्णा, वॉक करते थे, टॉक करते थे, ईट टुगेदर एज इंटीमेट फ्रेंड्स। तो वो दोस्ती के हिसाब से, बट अल्टीमेटली वो भक्त थे। अर्जुना वो भक्त ऑफ Lord Krishna. यस। वात्सल्य भाव में आपको मॉम और बेटे का जो भाव रहता है ना, वो वही भक्ति है। आप अपने बेटे की जो सेवा करते हो ना, वो काइंड ऑफ। और यशोदा, माता यशोदा एंड कृष्णा वाज दोस काइंड ऑफ भक्त। यशोदा वाज दैट काइंड ऑफ, बट नॉट कृष्णा। माधुर्य। माधुर्य भाव, शांता भाव भी बोलते हैं इसको, दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो, ठीक है। सो ये जो भाव है, इसमें आप पूरा आत्मसमर्पण कर देते हो। कि कृष्णा और राधा का क्या था, मतलब दे बिकम वन, ठीक है। बॉडी दो है लेकिन है एक, तो दैट्स द एग्जाम्पल। आपको याद रखना है, ऐसा आएगा कि कृष्णा और राधा का जो रिलेशन है वो कौन सा भाव है, एंड चारों भाव दे दिया, तो यू नीड टू रिमेंबर शांता भाव और माधुर्य भाव, whichever। अब आता है श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु पुराण में 9 डिफरेंट वे ऑफ भक्ति। तो नवविधा भक्ति बोलते हैं, आपने सुना होगा नवविधा भक्ति, कभी कभी टर्म्स आता है हमारे हिंदू स्ट्रक्चर में या बात करते करते। तो नवविधा भक्ति क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्या, आत्मनिवेदन, ये 9 भक्तियां हैं। श्रवण में क्या होता है? सुनना, ठीक है, भगवान की स्टोरियां सुनना इज कॉल्ड श्रवण। हम जैसे कि टीवी पे भी कथाएं सुनते हैं, या जो भी बाहर जाते हैं तो कहीं कथा सुनते हैं। परीक्षित करके एक राजा था, जिसने एक एग्जाम्पल दिया है इसमें परीक्षित का। जो परीक्षित ने अपने मतलब गुरु को के सामने बैठ के पूरा श्रवण किया पूरा, एंड देन ही गॉट लिबरेटेड, है ना, मोक्ष की प्राप्ति करी उन्होंने। कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन मंदिर में हम जाते हैं ना, तो कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीर्तन। स्मरण, रिमेम्बरिंग, आपको सुनना है, रिमेम्बर करना है, नाम लेते हुए भगवान का नाम ले रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो, जैसे प्रहलाद ने किया था, ठीक है ना। हाँ।
पाद सेवा, पाद सेवा इज नथिंग बट सर्विस। लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान का जो एक पिक्चर आपने देखा होगा, शेषनाग पे विष्णु जी बैठे हैं और वो Yes. पैर दबा रही है, सो दैट इज और कॉल्ड पैर पाद दबा दिए। अर्चना। और ऐसा नहीं है ये कि पाद सेवा है तो आप खाली भगवान की पैर, भगवान तो आपको मिलने से रहे। सो आई मीन आप अपने मॉम डैड का सेवा कर रहे हो, दैट इज पाद सेवा, ठीक है ना, मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ भक्ति यू आर डूइंग। अर्चना इज वर्शिपिंग, वंदना इज, वंदना मतलब कि आप भगवान के लिए मतलब सरेंडर होना है, वंदन करना है उनका। तो नॉर्मल हम पूजा करते हैं ना, तो मतलब कहीं पे भी जाके अपने आप को सरेंडर करते हैं कोई भी टेम्पल में, दैट इज कॉल्ड वंदना, वंदना। ठीक है ना। जैसे आप साष्टांग दंडवत करते हो ना भगवान को टेम्पल में जाके, साष्टांग दंडवत मतलब 8 लिम्स, साष्टांग मतलब अष्टांग, अष्टांग मतलब 8 लिम्स, अष्टांग एक करके एक आसन है, तो 8 लिम्स आपके शरीर जमीन पे रहते हैं, यू नमन गॉड, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वंदना। आपके जो शरीर के 8 अंग है ये वो जमीन को छुएंगे और आप हाथ जोड़ के उनको अष्टांग करते हो। दास्य का भाव जो है वो हनुमान जी के अंडर है, कंप्लीटली सरेंडर, मतलब कि आपका कुछ नहीं है, अभी वही है और उनकी सेवा करना है, दैट इज कॉल्ड दास्य भक्ति। सखा वाली भक्ति में कृष्णा ने अर्जुन को बोल दिया कि यही करना है, तो ही वाज लाइक बस ठीक है, अब कृष्णा ने बोला है अभी सामने मेरे फैमिली हो या कोई भी हो, जो उनको मारना है उनको मारना, सो दैट इज दास्य भक्ति, सखा भक्ति सॉरी। एंड आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मतलब कि वो सब कंप्लीटली सरेंडर कर देना उसके, समर्पित। ठीक है, जैसे कि बाली ने किया था। बाली मतलब वो बोलते हैं ना कि एक भौतिक जीवन में था और परिवार था, सब कुछ था, लेकिन जब राम उसको मिले तो ही कंप्लीटली सरेंडर्ड हिमसेल्फ, उनको आत्मनिवेदन करके उनके साथ में लग गया। अभी इसमें आप मतलब ये बोलोगे कि यार हनुमान जी भी तो साथ में ही लगे थे, लेकिन हनुमान जी ने तो उनका एक मिशन कंप्लीट होने के बाद हनुमान जी तो उनके साथ नहीं थे परमानेंटली, लेकिन बाली साइड में निकल लिए, फिर वापस आ गए, तो वो दैट इज एक मतलब एक पर्टिकुलर मिशन के लिए उन्होंने उनको अपने आप को सरेंडर कर दिया। ओके। किंग परीक्षित का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे लिबरेशन थ्रू श्रवण, ही हर्ड द ग्लोरीज ऑफ गॉड फ्रॉम सुख महर्षि, ठीक है ना, और दैट्स हाउ ही गॉट लिबरेटेड। कीर्तन आप देख सकते हो, ये कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है। ध्रुवा जो है, प्रहलाद और ध्रुवा, उन्होंने भगवान की पूजा मतलब ये किया था, स्मरण किया था, तो खुद वो प्रकट हुए थे। That's how this is called पाद सेवन। अर्चना का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं हम अपने भक्ति योग के लास्ट टॉपिक, ठीक है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ भक्त, कैसे टाइप्स के होते हैं भक्त में? एक देखो, पहले में तो हमने कैरेक्टर्स उसके मतलब अभी हम कैरेक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, कि व्हाट आर द क्वालिटीज वन भक्ति शुड हैव, ठीक है। तो एक होता है डिस्ट्रेस वाला भक्त, अर्थ उसको बोलते हैं। ये मतलब ये भक्तियों के जितने ये जो आ रहे ना, जो नए नए ना, वेरी इंपॉर्टेंट ना, इनको ना आपको भले चाहिए तो पीपीटी को वापस से एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड ये जो नेम्स है ना इसको फाइंड आउट करके निकाल लेना, बिकॉज दिस इज वेयर अपना जो 70 मार्क्स लेके आना है ना, वो इन्हीं में से घूम फिरा के आपको आने वाला है। तो 4 जो टाइप्स ऑफ डिवोटीज आर डिस्क्राइब्ड इन द भगवत गीता, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एंड ज्ञानी, ठीक है, ये 4 होते हैं। अर्थ जो होता है ना, वो मतलब कि हे भगवान मेरे को ये पेन है और इससे मुझे को मुक्ति दिला दो, कुल मिला के जो दुखी होता है इंसान, ठीक है ना, उसको कोई ना कोई तकलीफ, वो डिस्ट्रेस्ड वाला अर्थ भक्त जिसको बोलते हैं। जिज्ञासु भक्ति किसको बोलते हैं? जिसको जो नॉलेज के लिए जो हंगर है जिसमें, ठीक है ना, जिसको कुछ ना कुछ प्राप्त करने की, हो सकता है हम जो यहाँ बैठे हुए वो सब जिज्ञासु भक्त हैं कि हमको कुछ तो पाना है, कुछ नॉलेज गेन करना है, ओके। अर्थार्थी भक्त जो होता है वो मतलब कैसा है कि मैं आपको इतना 101 रुपया चढ़ा रहा हूँ, मेरा ये काम हो गया, ठीक है ना, उसको वो खाली वो मटेरियल वर्ल्ड की डिजायर्स रहती है, और उसमें से हम बहुत लोग हैं जो ये चाहते हैं और करते हैं ये काम। तो ये भी एक टाइप ऑफ भक्त है अर्थार्थी। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, ये नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू हैव टू रिमेम्बर। एंड लास्ट इज ज्ञानी। ज्ञानी क्या है? ही हु इज इन सर्च ऑफ द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब कि जिज्ञासु तो नॉलेज की खोज में रहता है, लेकिन ये भाई साहब तो नॉलेज पूरा हो गया और ये लिबरेशन की खोज में रहते हैं, वो अल्टीमेट ट्रूथ की खोज में रहते हैं। तो वो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्त आप इसको बोल सकते हो, जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञानी भक्त,
ठीक है? Okay, now we are going to Karma Yoga. The whole Karma essence of Yoga. Bhagavad Gita teaches Karma Yoga. It is the yoga of action. हम सब सुनते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर, और फल जब नहीं मिलता है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, साला मेरा काम हुआ ही नहीं। हम बोलते तो है लेकिन क्या उसको समझने की कोशिश नहीं करते, which is the main thing। I mean, एक छोटी सी लाइन में ना भागवत गीता में इतनी बड़ी बात बोल दी है कि अगर आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं बोलते ना विदाउट मतलब फल की आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है मैंने कर दिया है ना, आप इतने कूल हो जाओगे, इतने काम हो जाओगे, इतने सात्विक हो जाओगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते अपने आप को मेरे में क्या चेंजेस आ गया है। मतलब बोलते हैं, मतलब ये चीज मेरे से नहीं, अब मतलब लाखों लोगों से सुनोगे, वो ये बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो भागवत गीता उठाओ, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर बोले तो कोई भी एक पेज पढ़ लो, आप यू विल फाइंड द सॉल्यूशन देयर एंड दिस इज द फैक्ट। मतलब बुक उठाओ, घुमाओ उसको, जो भी पेज आपको दिमाग में दिखे उसको पढ़ लो, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। डू गुड एंड बी गुड, डू योर जॉब विद कंप्लीट डेडिकेशन एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ऑब्वियसली हम मतलब ये रहता है कि अब ये नहीं है कि हम जॉब के लिए जा रहे हैं और हम सैलरी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि सैलरी एक्सपेक्ट करनी पड़ती है वरना हमारा घर कैसे चलेगा। बट एक बोलते हैं ना कि एक वो जो लालच कहीं ना कहीं जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। यू हैव टू बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। आप एकदम से वैसे नहीं हो सकते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी और मैं फ्री में आपके पास काम, पॉसिबल नहीं है। Dedicate everything to the Supreme of God. Karma means action, yoga means union, ठीक है ना? So action, कर्म योगा means union through action. तो हम कर्म योगा भी चूज करते हैं, कर्म योगा हमने सबने चूज करके रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो अटैचमेंट की जो भावना है, इमोशंस हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड से ये अटैच हो जाते हैं ना, उससे हम दुखी होते हैं, उससे हमको स्ट्रेस मिलता है। वो समझ लिया हमने एक बार और अपने आप को डिटैच करके वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, लेट्स डू इट। We are completely into karma, which is written here. If you can joyfully involve yourself in any activity, this is called karma yoga. You are enjoying that activity, ठीक है ना? लेकिन जिसमें आप अगर एफर्ट लगा के कर रहे हो ना, ट्रेन के धक्के खा के आप मतलब नहीं चाहते हुए भी चीजें कर रहे हो, that is karma, not yoga, ठीक है ना? That is karma what you are doing. But karma yoga is you're enjoying things when you're doing. आपको मजा आ रहा है। तो चार चीजें आपको हमेशा याद रखनी। लॉ ऑफ कर्मा, द 4 मेजर लॉ ऑफ कर्मा, कर्म योगा आर डिस्क्राइब इन द भागवत गीता, सो दैट भागवत गीता में कर्म योग के बारे में बताया गया दैट यू कैन एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर वर्क टोटली फ्री फ्रॉम ऑल स्ट्रेसेस, ठीक है? अब कर्म करते हैं उसी से स्ट्रेस आता है, हम हमारी काम करते हैं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है या फिर हमको पैसा मिल रहा है हमारा खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है, सो दैट्स हाउ वी आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स। और चीजें मैनेज नहीं होने से हमारे ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर हमारा स्ट्रेस क्रिएट करता है, स्ट्रेस हमारा साइकोसोमेटिक सेक्सोमेटिक में जाता है, फिर हम ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, डायबिटीज के शिकार होते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हम ले लेते हैं, ठीक है ना? होती कहाँ से? वो ऊपर के लेवल से होती। तो वर्क विद द सेंस ऑफ ड्यूटी, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, डू नॉट अटैच योरसेल्फ, ठीक है? थोड़ा अटैचमेंट तो हमेशा होना ही चाहिए, मतलब कि आप सुबह आपका अटैचमेंट ही नहीं है तो सुबह आप उठ के काम पे ही नहीं जाओगे, तो इट हैज टू बी देयर, वर्क विदाउट गेटिंग इंटेंसली अटैच्ड टू द वर्क, ठीक है? एंजाइटी, अगर आपको एंजाइटी आ रही है, मतलब कि फियर ऑफ फेलियर जब होता है ना, जॉब में जाते हैं हम, टारगेट नहीं अचीव होगा या फिर घर पे रह रहे हैं तो हमारा कुछ टास्क ऐसे दिए गए हैं कि वो नहीं कंप्लीट होंगे तो मुझे ये फलाना ये बोलेगा या वो बोलेगा, तो जो एंजाइटी क्रिएट होती है ना, दैट शुड नॉट बी देयर। मतलब दीज आर द 4 मेजर लॉज, अगर ये इस पे आपने काबू पा लिया तो इट्स ओके, फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। लास्ट इज इक्वानिमिटी, मतलब कि आपका अगर लेट्स से आप फेल हो रहे हो, कोई काम किया आपने, लेट्स से पिछले महीने मैं सेल्स वाला बंदा था तो मुझे शायद लगता है वो सेल्स वाले एग्जांपल ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब कोई महीने में सेल्स टारगेट नहीं हुआ तो हम कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और यार टारगेट नहीं हुआ है, नेक्स्ट मंथ का प्रेजेंटेशन में क्या जवाब देंगे। लेकिन जब कर्म योगा में हो आप, इट्स ओके, मतलब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपने अपने एफर्ट डाले ना, एफर्ट मतलब कि आपने अपनी लेवल की जो ट्राई करनी थी वो कर ली है, उसके बाद
दो वो कर्म योगा नहीं है क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं होने के बाद आपको जो जो भाव रहना है ना, ठीक है, सक्सेस और फेलियर, और जब सक्सेस हो जाता है, आप टारगेट कर लिया, लेट्स से 110% टारगेट कर लिया, तो यू आर सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग, सो दैट शुड नॉट, also should not be there. So these are the 4 laws you need to remember. मदर टेरेसा और महात्मा गांधी को कर्मयोगी बोला गया क्योंकि वो एकदम अपने में ही मस्त थे और then they were doing their work. Karma yoga, each and every karma we gets an immediate result called karma phal. Karma phal is nothing but whatever you do here, okay, you get benefit of that, ठीक है। अब उसकी एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं है लेकिन आपको मिलेगा जरूर, ये स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, देखो ना, द स्क्रिप्चर से इवन द गॉड कैन नॉट एस्केप द कर्म फला, मतलब आप जो भी करोगे उसका फल आपको मिलने ही वाला है, आप कितना भी मतलब ऐसा इग्नोर कर दो आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है बताएं, द रियल प्रॉब्लम मेकर फॉर मैन इज संस्कारा। संस्कारा इज मतलब, संस्कारा का मतलब है कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाएंगे। अब देखो आपने कोई अच्छा काम कर दिया, ठीक है, आप भूल गए उसको, लेकिन सडनली आपको उसका फल इतना बड़ा मिला कि आपके दिमाग में वो चीज ईगो बन के आ गई कि मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉटरी लग गई फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, अब वो इंसान के पास मतलब वो एक है ना कि उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो ईगो में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम। कर्म फल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको मिलने ही वाला है। जब वो आ रहा है आपके पास, एट टाइम यू आर नॉट सपोज टू गेट इन योर माइंड कि भाई अब मेरे पास सब कुछ आ गया एंड मैं ही किंग हूं, दैट्स काइंड ऑफ फीलिंग विल कम एंड दैट इज कॉल्ड संस्कार, ठीक है। आगे थोड़ा और समझेंगे इसको। सो देखो कर्म का मतलब यही है कि आपने किसी के ऊपर पत्थर मारा है तो पत्थर उठ के आपके पास आने वाला है, और अब तो यही मतलब ये कलयुग में ही मतलब आपके जो नॉर्मल जो जर्नी चल रही है ना उसी में आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि ये बंदा इतना गलत कर रहा है उतना एट द सेम टाइम उसके साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है। ये थियरी है, मतलब मैं थोड़ा सा नास्तिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ, बट आई ऑल्सो बिलीव इन दिस कि ये होता है, ऐसा होता है, एंड वी there is an ultimate energy who is watching us what we are doing and that accordingly अपना जो लाइफस्टाइल है वो स्ट्रेस में जाता है नहीं जाता है, हमारी जो थिंकिंग है वो, हम बाहर से कितने भी अच्छे दिख रहे हैं लेकिन हम अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं दैट इज आल्सो रॉन्ग प्रैक्टिस वी आर डूइंग। पतंजलि में आपको ये सारी चीजों के बारे में बहुत मजा आएगा सुनने में। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध। संचित कर्म क्या होता है, जो पिछले टाइम से आपने जो भी काम किया है, मतलब आप लेट्स से यू आर 25 ईयर ओल्ड और 34 ईयर ओल्ड, आपने पुराने टाइम में आपने जो भी अच्छे काम बुरे काम जो भी किए उसका the vast store of accumulated action done in the past, the fruits of which have not yet been reaped, ठीक है। सो पिछले कर्म का आपको जो फल होता है ना उसको संचित कर्म बोलते हैं, कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ में तो इट इज बिकॉज इट इज कॉल्ड संचित कर्म, आपके अच्छे पिछले कर्मों की वजह से आप ये जो अच्छे काम कर रहे हो। आगामी कर्म इज द एक्शन दैट विल बी डन इन द फ्यूचर, ठीक है, हम आगे फ्यूचर में जो भी करेंगे अच्छा बुरा, ठीक है ना, दैट इज अवर आगामी कर्म, आने वाला, ठीक है। प्रारब्ध इज प्रेजेंट, द एक्शन दैट हैज बिगन टू fructify the fruits of which is being reaped in this life। अभी हम जो चल रहा है हमारा जीवन उसमें हमें अगर मान लो हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, दैट इज अवर कर्मा, ठीक है। हमने जो काम पिछले टाइम किया है उसको ये टाइम में हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना उसके, वो प्रारब्ध कर्म। ये पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, संचित कर्म, ठीक है। अब नीचे जाओगे आप तो बर्थ और ये डेथ का साइकिल है, जो लाइफ स्पैन है ये, दिस इज कॉल्ड प्रारब्ध, मतलब कि आपके लाइफ स्पैन में ये संचित कर्म से जो आपका जो संचित मतलब संजोया हुआ जो कर्म है फला है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो आपके जीवन में वो सारी चीजें काम आती है, ठीक है ना। और आगामी कर्म इज आपके मतलब जो फ्यूचर में आप जो करने वाले हो, आपकी लाइफ स्पैन चल रही है, ठीक है ना, उसमें आप जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो उसका आपको आगामी कर्म में स्टोर होगा, जो भी आपका कर्मा है, देन इट विल गो बैक टू संचित कर्मा। दिस इज हाउ द साइकिल। अपने को समझने की जरूरत है खाली इसको, बाकी तो आप अपने हिसाब से कर्म करते रहो। तत्व कर्म होने चाहिए, राजसिक कर्म होने चाहिए, तामसिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये जो पर्सनालिटीज है
जो योगा में दी गई है, सत्व, रजस और तमसिक, और ये हम कल शायद ये आने वाला है पर्सनालिटीज टॉपिक। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आप कौन हो, आप सत्विक पर्सन हो, राजसिक पर्सन हो, तामसिक पर्सन हो, यू विल कम। अब आ जाते हैं हम हमारे राजयोग की तरफ, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम तो हठयोग की तरफ है, हठयोग सीखना है हमें तो सबसे पहले, उसके बाद हम राजयोग की तरफ आएंगे, बट राजयोग को भी समझना है। सो स्वामी विवेकानंद वाज द वन हु प्रोपोगेटेड, आई मीन ऑब्वियसली ये महर्षि पतंजलि का जो योग है 2500 साल पुराना जो योग है, पतंजलि योग सूत्र, जो उन्होंने 195 सूत्रास में पूरा थ्योरी डाल दिया था। एंड दिस वाज द फर्स्ट एरा, मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्लासिकल योगा जो है दैट इज राजयोगा, दैट इज पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, पतंजलि योगा, तो पतंजलि एंड राजयोगा इज द सेम। ओके, राजयोगा विवेकानंद ने उनको नाम दिया है, पतंजलि योगा को राजयोगा। ठीक है, तो राजयोगा मतलब कि रॉयल और किंगली योगा। इट इज द सपोज्ड क्लाइमेक्स ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा। हठ योग के बारे में आप सुनते हो, ठीक है, हठ योगा हठ योगा हठ योगा सब करते रहते हो। आज तक तो हठ योगा के ही सब वेरिएशंस आगे मार्केट में आए हुए हैं। हठ योग की डेफिनेशन में बोला गया है कि हठ योगा का प्रैक्टिस करके आपको राजयोग की तरफ बढ़ना है। तो हठ योग की प्रैक्टिस करते करते यू कैन गो टुवर्ड्स राजयोगा, पतंजलि जो जिसमें बताया गया। और पतंजलि ने राजयोगा में क्या बताया, ओनली मेंटल, सारा माइंड के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज उन्होंने बताई है वो सब माइंड से रिलेटेड, मतलब कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, माइंड क्यों हमें डिस्टर्ब करता है, व्हाट इज व्हाई। आज की जो एरा है, आज की एरा है, उसमें आध्यात्मिक जो बीमारियां हैं, मतलब 3 टाइप की जो बीमारी होती है, उसमें से आध्यात्मिक बीमारी सबसे ज्यादा है। आध्यात्मिक बीमारी मतलब जो कि मेंटल लेवल से उत्पन्न होने वाली बीमारी, जो साइकोसोमेटिक बीमारी है, वो क्यों इतनी ज्यादा आ रही है, बिकॉज वी आर नॉट केयरिंग अवर, एंड दैट्स व्हाट गिवन इन पतंजलि योग। स्वामी स्वात्मा, ये देखो इसमें लिखा है, इनफैक्ट स्वात्मा रामा इन हिज हठ योग प्रदीपिका से दैट हठ योगा इज अ स्टेयरकेस लीडिंग टू राजयोग। सो हठ योग का प्रैक्टिस करते करते आपको राजयोग की तरफ बढ़ना है, ये एक सीढ़ी है। ठीक है, हम जो आसन प्रैक्टिस और वो सब करते हैं ना, फिर आसन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उसके बाद वी विल स्टार्ट फोकसिंग टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। ये है क्या है, मतलब ना मेडिटेशन और सब धीरे धीरे करने के बाद तो आपका डिटैचमेंट का फीलिंग वैसे ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है यार, मतलब क्या है, मतलब एक दिन तो सबको जाना है, और मैं इतना लगाव रख रख के कल ही चला गया तो क्या होगा। ठीक है ना, तो why I am ruining my present life because of the future stress, फ्यूचर का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लेके चल रहा हूँ। राजयोगा here may not refer to the particular form of yoga but to the ultimate state of self realization। राजयोगा मतलब पतंजलि ने योगा का बोला गया स्थिर सुखम आसन, मतलब कि आसन जो है वो कोई भी स्थिर पोजीशन है ना, वो आसन है। उन्होंने ये नहीं बोला कि 84 लाख आसन है या फिर 84 आसन है या 32 आसन है, जो कि डिफरेंट जो हठ योग की बुक्स है ना उसमें बताया गया है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट राजयोग में सिर्फ बोला गया है कि आसन वो है जिसमें आप स्थिर रह सकते हो, जिसमें आप स्टेबल रह सकते हो, बिकॉज उनका अल्टीमेट गोल तो मेडिटेशन था, और मेडिटेशन आप अगर कोई भी पोजीशन में कर पा रहे हो दैट इज आसन। ओके, बट द अल्टीमेट स्टेट इज सेल्फ रियलाइज, मतलब कि खुद को जानना, खुद को पकड़ लिया ना एक बार आपने, अंदर देखो आप अपने, कभी मेडिटेट करते करते ना अपने अंदर झांक के देखना कि आपका जो हार्ट है ना वो 24/7 चलते रहता है। वो उनको नहीं, उसको ऐसा नहीं फीलिंग आता है कि यार 1 मिनट के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, आप एक मिनट के लिए उन्होंने रेस्ट किया तो फिर आप परमानेंटली रेस्ट हो जाओगे। ठीक है, सो अंदर के ऑर्गन्स चल रहे हैं ना परमानेंटली, तो दैट इज द बिगर वर्ल्ड देन द आउटर थिंग व्हाट यू आर सीइंग, आई मीन राइट नाउ। तो हम बाहर का मटेरियल वर्ल्ड्स को देखते हैं ना, उससे ज्यादा तो कई गुना ज्यादा तो हमारा अंदर का संसार बना हुआ है, जिसको हमको देखना है, जो ऑटोमेटिकली चल रहा है। ठीक है ना, उसको किसी ने बनाया नहीं, या फिर ऐसा नहीं है कि डैमेज हो गया वो पूरा, वो पर्टिकुलर ऑर्गन निकल दिया तो आप फिर भी चल रहे हो, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। थैंक्स टू स्वामी विवेकानंद, ही इज, आई मीन इट इज रिटन हियर, स्वामी विवेकानंद को धन्यवाद है। राजयोगा केम टू बी अंडरस्टूड एज योगा प्रोपाउंडेड बाय महर्षि पतंजलि इन हिज। क्या हो रहा था ना कि ये अपने विवेकानंद तो आप सभी को जानते हो, मतलब मॉडर्न योगी का एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने दिया था कि मॉडर्न योगी कौन है, स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो स्पीच दी थी, धर्म सभा जब हुई थी, वो स्पीच में उन्होंने कहीं ना कहीं योग को लेके
इंडिया की जो हेरिटेज है उसको लेकर ले जाके पूरे दुनिया में उनको बताया। और उसके बाद आप देखोगे तो आज मतलब ये स्टेज आ गया कि हमारे से ज्यादा, ठीक है वो तो अभी की गवर्नमेंट को शुक्रिया कि कम से कम थोड़ा सा योगा को प्रमोट कर रहे हैं, अदरवाइज तो वेस्टर्न कंट्रीज इसको पूरा का पूरा टेक ओवर कर चुके थे और उन्होंने खाली इस आसन को पकड़ा। अब धीरे धीरे वो मेंटल और वो सारी चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग संस्कृत लैंग्वेज, मतलब उनको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी ये सब चीज। इन महर्षि पतंजलि वर्ड, महर्षि पतंजलि ने बोला तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि योग सूत्र 1 ये श्लोक दिया है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का मतलब होता है कि एक तदा द्रष्टु स्वरूपे, एक पॉइंट पे फोकस करना, वो अवस्था आपको मेंटेन करनी है। दैट इज वेयर योर गोल हैज टू बी, और हम वो नहीं कर पाते हैं, इनफैक्ट कोई नहीं कर पाता है। जो योगी है जो ये लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, वो हमको ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, सॉरी यहाँ पे दिखते ही नहीं, ठीक है ना। सो आप देखोगे कि हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए बैठे हैं तो हमारा दिमाग 4 जगह पे और पहुंच जाता है कि यार ये बाकी है, इसको नहीं दिया, वो नहीं दिया। सो अगेन वी ब्रिंग बैक अवर फोकस एंड दैट्स हाउ वी प्रैक्टिस टू ब्रिंग अवर फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। चलो हमारा अभी ना इसके बाद हट योग है, देन वी विल वाइंड अप, सो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। राजयोगा एंड अष्टांग, सो अष्टांग वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। अष्टांग के बारे में भी आपने सुना है। सो अष्टांग जो है ना वो राजयोग से आया, पतंजलि से आया, दैट यू हैव टू रिमेंबर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करेंगे। राजयोगा इज ऑल्सो कॉल्ड अष्टांग योगा, ठीक है। राजयोगा, पतंजलि योगा, अष्टांग योगा आर ऑल सेम, रेफरिंग टू द 8 limbs that leads to the absolute mental control. The chief practice of Raj Yoga is meditation. Meditation इसका अल्टीमेट गोल है। सबका गोल एक्चुअल में देखा जाए तो सेल्फ रियलाइजेशन ही होता है। अब हम अगर ये अष्टांग की बात समझ जाते हैं ना, तो अपने को मोटा मोटा एक बार ना पतंजलि का ये चीज समझ में आ जाएगा। पतंजलि में एक्चुअली 4 पाद बताए गए हैं। अब क्या है ना, इसमें दिस इज जस्ट अ ब्रीफिंग अबाउट पतंजलि आई एम गिविंग यू। पतंजलि का हमारे पास में एक स्लाइड, एक अलग से प्रेजेंटेशन, बड़ा वाला प्रेजेंटेशन होगा जो लेवल 1 के लिए दिया गया है। उसमें सूत्रास होंगे, सूत्रास चैंटिंग होगा, वो सब चीजें होंगी। दिस इज द ओवरऑल, मतलब एक मतलब बोलते हैं ना कि ट्रक्स में बता रहा हूँ कि 8 limbs is not only पतंजलि योग सूत्र, 195 सूत्र नहीं, ये तो खाली अष्टांग एक पाद है जिसका ब्रीफिंग इसमें दिया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। हमारा ध्यान खाली वो तीसरे लिंब पे रहता है, आसन, पोस्चर, ठीक है। उसके ऊपर पतंजलि योग सूत्र में ये बोला है कि हमें यमस और नियम के पालन करने सबसे पहले, उसके बाद यू कम टुवर्ड्स आसन। हम यम नियम को तो भूल के हम आसन के ऊपर आ जाते हैं, इट इज फाइन बिकॉज वी वांट टू गेट रिड ऑफ द फिजिकल issues what we have right now, but then it is also necessary that we focus on yamas and niyamas. अब यम क्या है? यम का मतलब है आपको क्या करना चाहिए, नियम का मतलब है आपको क्या नहीं करना चाहिए, है ना। देखो यम का मतलब, यम में क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। सो अहिंसा, अहिंसा का मतलब है मतलब काइंडनेस, मतलब आप किसी को चोट नहीं पहुंचाओ, सत्य बोलो। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है, मतलब कि किसी का भी। ब्रह्मचर्य इज मॉडरेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप शादी नहीं करोगे ना ब्रह्मचर्य बन के घूमोगे, वो वाला ब्रह्मचर्य की बारे में बात नहीं करी है, ठीक है। एंड अपरिग्रह इज जेनरोसिटी। नियमास का मतलब होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अभी देख लो, शौच मतलब प्योरिटी, क्लीन योरसेल्फ एवरी डे। संतोष मतलब कंटेंटमेंट, संतोष की भावना रखनी, मतलब कि आपको दोनों सक्सेस और फेलियर हर जगह पे आपको अपने आप को संतोष में डालना है। तप इज योर प्रैक्टिस, ठीक है, हार्ड वर्क यू कैन से। स्वाध्याय इज सेल्फ स्टडी, खुद के ऊपर अध्ययन करना। स्वाध्याय के बारे में बहुत पतंजलि में बोला गया, आगे के जो चैप्टर्स जो है ना उसके अंदर स्वाध्याय को मतलब अल्टीमेट मतलब बोलते हैं ना कि चित्त का जो अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो स्वाध्याय है, ठीक है। स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान इज कुछ नहीं तो फिर एंड में सरेंडर टू गॉड, मतलब इट इज बिकॉज ऑफ द गॉड्स मर्जी, मतलब कि उनकी वजह से जो भी हो रहा है वो हो रहा है। तो दैट्स these are the 5 हाँ ये इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये ध्यान में रख लेना आप।
8 लिम्स बताएंगे, 8 लिम्स के बारे में पूछेंगे, यमास क्या क्या है, यम में कोई नियम घुसेड़ देंगे तो उसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है. सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज, एंड ये वापस पढ़ेंगे हम एनीवेज, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन थियरी और है, जब योगा वॉलंटियर बैच कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग इसको कवर करने वाले हैं. तो ये मतलब क्या होता है, ब्रीफ देना जरूरी है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस, बिकॉज़ स्कूल्स ऑफ योगा में राजयोग के बारे में बताया गया है. तो राजयोग में 8 लिम्स दिया है, तो 8 लिम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. आसन इज नथिंग बट द पोस्चर. प्राणायाम आपको पता ही है, जो मेडिटेशन के पहले हम अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, जो अष्टकुंभक जिसको बोलते हैं हठयोग प्रदीपिका में और पतंजलि में, उसको प्राणायाम कहते हैं. तो प्राणायाम, अलग अलग प्राणायाम हम सीखने वाले, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी और ये सारे उज्जयी. प्रत्याहार, प्रत्याहार इज नथिंग बट कंट्रोलिंग योर सेंसेस, मतलब कि जो हमारी 5 जो सेंसेस है, ठीक है, उनको कंट्रोल करना. क्योंकि आज जो भी समस्या से हम जूझते हैं ना, उसका एक ही रीजन है, हमारे सेंसेस. कोई अच्छा लगा, कोई टेस्ट में अच्छा लगा, कोई सुन के अच्छा लगा, कोई देख के अच्छा लगा, ठीक है, कोई सुन के अच्छा लगा, तो वी अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट, ठीक है, एंड वो हमारी एक बोलते हैं ना इश्यूज का कारण बनता है. सो इफ वी कैन कंट्रोल देम, ठीक है, मतलब कि आपको टेस्ट अच्छा लगा बट स्टिल यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ, नो यू आर नॉट गोइंग टू ईट दिस. जब उसके ऊपर आपकी बुद्धि हावी हो जाती है ना, यू कैन इजीली कंट्रोल इट. लेकिन माइंड हावी हो जाता है तो फिर आप उस तरफ ले जाते हो. धारणा इज कंसंट्रेशन, ध्यान इज मेडिटेशन. व्हाट इज द डिफरेंस? कॉन्सेंट्रेट ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर वो ऑब्जेक्ट के बाद उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मतलब हट जाना, मतलब ध्यान में चले गए आप पूरा, ठीक है. सबसे पहले तो आप मतलब अपने सेंसेस को विड्रॉ करके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे, ठीक है, एंड देन यू गो टुवर्ड्स मेडिटेशन. मेडिटेशन में आपके पास कुछ नहीं, हम तो मेडिटेशन का बोलते चलो मेडिटेशन में बैठते हैं, पर वो मेडिटेशन हम नहीं करते. टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूं तो हम प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम के बाद हम धारणा में, कंसंट्रेशन में ही उलझ जाते हैं और वहीं पहुंच भी नहीं पाते आगे. एंड समाधि इज द प्योर ब्लिस, मतलब उसके अंदर चले गए तो फिर वापस ही नहीं आओगे, ठीक है. सो जिसको नहीं जाना है उधर, तो आपको धारणा तक ही रहना. चलो अभी आ गए हम हठयोग, ठीक है, लास्ट है हमारा, ज्यादा टाइम नहीं लिया हूं मैंने. प्रथमोपदेश, ठीक है ना, इसका ये जो हठयोग का पहला जो उपदेश दिया हुआ है, ओम श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोदुमिच्छोर धीरोहि णीव. ठीक है, इसका मतलब यह है कि वी ऑफर आवर सॉल्यूशन टू द फर्स्ट एक्सपाउंडर एंड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स हु हैज प्रीच्ड द नॉलेज ऑफ हठ योगा. और वो कौन है? आदिनाथ, आदि योगी. ओके, which shines on Saret or Saret stands as ladder or stepping stone for them who wish to climb and reach the highest peak of yoga known as Raj Yoga. में बोला गया है कि ओम श्री आदिनाथाय नमोस्तुते, आपको जो हठयोग को एक्सपाउंडर है, जो हठयोग के जो मास्टर है हठयोग के, उनको नमन करते हैं हम. विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग का मतलब यह है कि जो एक स्टेपिंग स्टोन है राजयोग की तरफ जाने के लिए हठयोग, स्टैंड एज लेडर और स्टेपिंग स्टोन, जो हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था, फॉर देम हु विश टू क्लाइम एंड रीच द हाईएस्ट पीक ऑफ योगा. तो हम जो सीखेंगे ना, वो हठयोग सीखेंगे, हठयोग के आसन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना. सो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा? हम राजयोग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है. एंड राजयोग में आप जब राजयोग में पतंजलि योग सूत्र की बुक किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो मुझे बताना, आई विल सेंड यू. स्वामी विवेकानंद की 195 सूत्रास को पूरा एक्सप्लेन करके रखा है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. जिसको भी मतलब ये जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने का थोड़ा सा है, वो बताना, बहुत मजा आएगा उसको. तो हठ योगा इज फोर्स फ्रॉम तंत्र. तंत्र योगा जब था ना हमारे पास, तंत्र मतलब तंत्र योगा में जैसे शवासन लिटा के उसकी माइंड मैपिंग करते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे, एंड देन अकॉर्डिंगली ही यूज्ड टू वर्क. तो वो योग से हठ योग आया हुआ है. अब तंत्र योग उसमें कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना. सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट हैज कम फ्रॉम दैट. इट इज अ फॉर्म ऑफ योगा विच इज मोर फिजिकली ओरिएंटेड. हठ योग में फिजिकल पोस्चर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है.
पतंजलि योग सूत्र 2500 पुराना साल, उस टाइम पे आदमी की फिजिकल अपीयरेंस इतना इशू कुछ था ही नहीं उनके पास, तो स्ट्रेस तो सवाल ही नहीं। 2500 साल पहले कौन सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड था या कंपटीशन था या कुछ था जो इंसान स्ट्रेस लेगा? हो सकता है 100 में से लाख में से एक जन रहेगा वो ये इशू से सफर कर रहा होगा, लेकिन हठ योग तो 500 साल पुराना, 500 या जैसे 10th सेंचुरी से तो 1000 साल ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं हम। तो 1000 साल में धीरे धीरे क्या होता, मुगल आ गए, ब्रिटिश आए, ये तो और धीरे धीरे हम मशीनरीज डेवलपमेंट इतना सब कुछ हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं Knowledge. हमारी बॉडी शिथिल हुई। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस करना भी जरूरी है। हाँ अपना जी कुछ बोल रहे हैं आप। No, no, continue. Most Hatha Yoga systems begin with purification practice. Purification practice क्या होती है? चोदन क्रिया। चोदन क्रिया क्या होती है? छठ क्रिया। छठ क्रिया क्या होती है? शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया क्या होती है? प्योरीफाइंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, अंदर के ऑर्गन्स को क्लीन करना। इसमें जैसे जल नेति आ गया, वमन दौती आ गया, धोती बस्ती नेति कपालभाति, ये सारी जो एक्टिविटीज है ये शोधन क्रिया में आती है। As against Patanjali's Ashtanga Yoga, which begins with Yama and Niyama. हमने अष्टांग में क्या पढ़ा? यम नियम पढ़ा, लेकिन हठ योग शुरू होता है शोधन क्रिया से। जो 4 चैप्टर्स है वो हम अगले प्रेजेंटेशन में पढ़ने वाले हैं। योगा स्क्रिप्चर्स स्टार्टेड फ्रॉम शिव संहिता, फिर सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ ने जो 10th सेंचुरी में लिखी थी, हठ योग प्रदीपिका। एक सेकंड होल्ड कर। ओके आई एम सॉरी। तो शिव संहिता, सिद्धांत पद्धति, सिद्धांत पद्धति, गोरक्षनाथ, ये नाम याद रखना है आपको। सिद्धांत पद्धति किसके द्वारा लिखी गई थी? गोरक्षनाथ। हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम 15th सेंचुरी। हेरंड संहिता उसके बाद आई। सो यहां तक हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन दिए गए। ठीक है, खाली 15 ही आसन है पूरी बुक में, बाकी उन्होंने शुद्धि क्रिया और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हेरंड संहिता उसके बाद आई है। ठीक है, 17th सेंचुरी। हिरण्य संहिता में 32 आसन के बारे में बताया गया। आसन बढ़ गए धीरे धीरे। ठीक है, हठ रत्नावली आई। हठ रत्नावली श्रीनिवास भट्ट 18th सेंचुरी में आई। आसन बढ़ के पहुंच गए 84। एंड दैट्स हाउ आसन प्रैक्टिस जो है ना वो बढ़ती जा रही है। भगवान शिव ने बोला था 84 लाख आसन। ठीक है, उसमें से हठ योग प्रदीपिका ने बोला 15 सबसे बेस्ट आसन है। हेरंड ने बोला 32 सबसे बेस्ट आसन है। हठ रत्नावली बोल रही 84 आसन आर बेस्ट। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज आसनास। जो सिलेबस में दी है वो आसन के बारे में पढ़ेंगे। कोई एक्स्ट्रा आसन के बारे में जानकारी चाहता है तो दीज बुक्स दे कैन फाइंड ऑनलाइन एंड दे कैन गो थ्रू दीज बुक्स, जिसमें शोधन क्रिया, धारणा, ध्यान, समाधि सब कुछ दिया हुआ है इंक्लूडिंग आसन। ओके, तो हठ का मतलब क्या होता है? हठ का मतलब स्तबन नहीं होता है। ठीक है ना, आपने को लगता है ना वो हठ नहीं मारा। ह का मतलब होता है सन, थ का मतलब होता है मून। ईडा एंड पिंगला, मैं इसको ना पूरी स्लाइड को है ना एक ही इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है ना वो है मून, याद रखना है। राइट नॉस्ट्रल क्या है? सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेंगे आप। पिंगला ईडा, सन मून। मून क्या है पता है? ईडा। और ईडा क्या है? लेफ्ट नॉस्ट्रल। सो लेफ्ट नॉस्ट्रल इज योर मून और ईडा। ईडा नाड़ी, नाड़ी होती है ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। ठीक है, और सुषुम्ना होती है। ठीक है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ईडा, योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज ईडा नाड़ी, योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज मून, जो ठंडा होता है। आप हमेशा देखोगे ना तो मोस्टली आप जब भी डल रहते हो ना, सुबह उठोगे तो आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो ब्लॉक रहता है, आप सांस ही नहीं ले पाते। आपकी राइट चल रही है। ठीक है, राइट नॉस्ट्रल इज इंडिकेटेड एज पिंगला नाड़ी। ठीक है, पिंगला नाड़ी का मतलब होता है सन। सन मतलब की ऊर्जा, हीट, तो हीट जनरेट करती है। आप अगर मान लो अपने आप को डल महसूस कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है आपको राइट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करना है, तो आप थोड़े से एनर्जेटिक हो जाओगे। जो इंसान ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे बच्चे हैं वो, उनको लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करवाने के लिए मतलब वो प्रैक्टिस करो थोड़ा टाइम के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करेगा, वो थोड़ा सा कूलनेस उसके अंदर आएगा। ओके, और दोनों का हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? दोनों को बैलेंस करना। हमारी लेफ्ट और राइट दोनों नॉस्ट्रल्स हमारे कंट्रोल में, और हम ब्रीदिंग जो लेना दोनों नॉस्ट्रल से साथ में ले। अभी आप फील करके देखो कौन सी एक्टिव है। राइट ऑब्वियसली ज्यादा होती है। अगर कोई रजसिक पर्सन है तो उसकी राइट ज्यादा होती है।
राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये देखो यहाँ पे दिस इज ईडा। यहाँ इसमें कुछ समझोगे नहीं आप, वैसे पिंगला मैंने एक पिक्चर दिया आपको। So this we've already explained. The term Hata is the union of two letters, Ha, Tha. Here Ha means sun, Tha means moon. ठीक है? Ha means Ida, sun, Tha means Pingla. Pingla Nadi represents the sun or Surya. Swar and Ida Nadi is the moon, Chandra Nadi. चंद्र बोल सकते हो, चंद्र स्वर। अपने दादा दादी या पुराने लोग जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहते हैं ना, उनसे कभी सुना होगा आपने, चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र स्वर चल रहा है इसका। अभी कौन सा चल रहा है? अभी मुहूर्त भी वो लोग नाड़ी देख के निकालते थे, ये चंद्र स्वर चल रहा है, चलो ठीक है अभी कर डालते हैं। Ida means the yoga to bring balance between the sun and the moon. ईडा एंड पिंगला को बैलेंस करना है, अल्टीमेट हमारा गोल है। अभी नहीं हो रहा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरा दोनों नॉस्ट्रल्स बैलेंस हो गया है, आप प्राणायाम अच्छे से कर पाते हो। सो ये प्राणायाम का प्रैक्टिस और ये सब का अल्टीमेट गोल ही ईडा और पिंगला को बैलेंस करना है। जब ईडा पिंगला बैलेंस होगी देन ओनली योर सुषुम्ना विल गेट एक्टिवेटेड, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है, बट यू कैन एटलीस्ट गो इनटू मेडिटेशन, यू कैन काम डाउन योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द प्राणायामास। With this union, the Kundalini, which is in latent state, would be awakened, okay, to the Sushumna. It starts upward journey. We will discuss about this. This थोड़ा सा एक है. It crosses all the chakras while heading towards सहस्त्र. सहस्त्र अपना सबसे ऊपर वाला चक्र होता है, वो चक्र पे अपने सुषुम्ना पहुंच गई है, मतलब कि हम लिबरेट हो गए। This is the union of Atma and Paramatma. So आत्मा और परमात्मा का यूनियन मतलब कि हट है। With this union, the ignorance of the practitioners would be eliminated, and he then glimpses the radiance of divine enlightenment. All the sufferings would be uprooted. These are the benefits given in this. Therefore, this state of the union is called yoga. This is the valid sense of Hatha Yoga. The aim of Hatha Yoga is to control the body and mind. This is because without strengthening and making the body or mind healthy, spiritual endeavors can't get accomplished. So what happens, you know, आपको पहले श्लोक में बताया गया कि पतंजलि योग जो राजयोग की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो you have to keep your mind and body ready to go towards that. Okay, and हठ योगा में ज्यादा आसन के बारे में बोला गया है, शुद्धि क्रिया के बारे में बोला गया है, because they want your body to get ready to do प्राणायाम। अगर आपका बॉडी में आप बैठ ही नहीं पा रहे हो सही से, तो आप आसन प्राणायाम क्या करोगे? एंड हाउ विल यू गो टुवर्ड्स दैट मेडिटेशन प्रोसेस? आप थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर नीचे होंगे तो योर फोकस विल गेट डाइवर्टेड। Okay, so that's why Hatha Yoga is saying that, you know, this is the core aim, to control your body and mind, and that's how you can go towards to accomplish your ultimate goal, which is Raj Yoga. I think we are done for the day. Thank you so much everyone for attending this session. I will stop the recording.